the new chapter of SST, Physical Divisions of India. India is a very beautiful country, and let us know what are the various physical divisions of India. Let's study the introduction. India is located in the Asian continent. Now, where is India located? In the largest continent of our earth, that is the Asia. हमारा एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारी इंडिया जो है वहां पर स्थित है. इट इज सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स. इंडिया 3 तरफ से सीज से सराउंडेड है. दैट इज द बे ऑफ बंगाल विच इज इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. इंडियन ओशन हमारी साउथ पे है. The Great Himalayas are situated to the north of India. तो हमारी इंडिया के नॉर्थ पे क्या है? ग्रेट हिमालयास. The land surface of India varies from place to place. It is not the same everywhere. हमारी इंडिया में जो लैंड है, जो ज़मीनी हिस्सा है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म का है. It is of different kind. It is not the same everywhere. हर जगह एक जैसा नहीं है. It has high mountains, plains, valleys, plateaus, hot desert, coastline, beautiful beaches and islands. इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे लैंड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं. ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही हरे भरे मैदान हैं, वैलीज हैं, टेबल लैंड है, गर्मी वाला डेजर्ट है, कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र का तट वाला इलाका, ब्यूटिफुल बीचेस एंड आइलैंड्स. ऑल दीज फीचर्स मेक इंडिया अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री. ये सारे फीचर्स जो हैं अलग अलग मिलके हमारे देश को बहुत ही सुंदर बनाती हैं. वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सो मच वेराइटी इन द लैंडफॉर्म्स. बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इतनी वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आपको मिलेंगे. हमारा इंडिया उनमें से एक है. If you have a look of the map, you can see here that we have the Great Himalayas here. These are the Himalayas, the mountain range. Okay, on the west side we have the Arabian Sea, we have Bay of Bengal on the east, and towards the south we have Indian Ocean. Okay, India can mainly be divided into 6 physical regions. तो कितने regions हैं जहाँ पर 6 physical regions हैं हमारे देश के. इंडिया को इनमें डिवाइड किया जा सकता है. और पहला है Northern Mountains, which are present here. Then we have the northern plains, the green portion where the Ganga flows. The southern plateau region, this is whole the plateau region. The great Indian desert, which is here. The coastal plains, now coastal plains are here, which are at the coast. And the island regions, some island regions are there like Lakshadweep and the Andamans. Now let us learn about these features in detail. The northern mountains. Northern mountains means the Himalayas. The northern part of India has very high mountain ranges called the Himalayas. तो हमारे northern part of India में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हम उन्हें बुलाते हैं the Himalayas. The word Himalaya. Now this is actually made of 2 things. Himalaya. Himalaya means the abode of snow. Himalayas have the highest mountain ranges in the world. तो हिमालय वो पहाड़ हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज. सो माउंट एवरेस्ट जो है हमारे हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी है. इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है. इट इज इन नेपाल. वेयर इज इट सिचुएटेड? ये नेपाल में सिचुएटेड है. सम अदर पीक्स आर, कोई और भी ऐसी पीक्स हैं जो कि ऊंची हैं, वो हैं
Nanda Devi, Kanchenjunga, K2 and Dhaulagiri. These are the 4 other peaks which are also high and they are known as Nanda Devi, Kanchenjunga, K2 and Dhaulagiri. K2 is the highest peak in the India. K2 जो है हमारे इंडिया की highest peak है. The Himalayas have glaciers. The melting of snow of these glaciers give rise to rivers like the Ganga, Yamuna, Satluj and Brahmaputra. So this states कि हमारे जो हिमालयाज में हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि बर्फ़ से कवर्ड हैं और जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो इनका जो स्नो है जब वो मेल्ट करता है वो ऐसी नदियों को जन्म देता है. इट गिव्स राइज टू सच रिवर्स जैसे कि मेन रिवर्स हैं गंगा, यमुना, सतलुज एंड दी ब्रह्मपुत्र. Now the more to know fact tells us that Bachendri Pal was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. She was the first Indian woman जिन्होंने Mount Everest पे चढ़ाई की थी and she succeeded. The first men to climb Mount Everest were Edmund Hillary. This is the picture of Edmund Hillary and Tenzing Norgay in 1953. So these two were the first men who climbed Mount Everest. Let's come to the northern plains. Now in this picture you can see this is the even surface. ये उबड़ खाबड़ नहीं है. This is a plain smooth surface. We call it as the northern plains. Let us study about it. The northern plains lie to the south of Himalayas. Northern plains Himalayas के साउथ में हैं along the course of river Ganga. और इन plains से कौन सी नदी बहती है? That is called as river Ganga. The northern plains are also called the Gangetic plains. Northern plains को हम Gangetic plains के नाम से भी जानते हैं as the river Ganga flow through them क्योंकि ये नदी उनके थ्रू फ्लो करती है. Many rivers like the Ganga and Yamuna flow through these plains. So apart from Ganga, Yamuna भी है जो कि इन plains के थ्रू flow करती है. These rivers bring the fine soil called silt. ये rivers एक fine soil लाती हैं जिसको हम बुलाते हैं silt, S-I-L-T, silt, and make the land very fertile. और ये जो सॉइल है जिसको हम सिल्ट कहते हैं ये हमारे लैंड को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है. फर्टाइल सॉइल एक्चुअली हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. Different crops are grown in the northern plains. Why? Because of this fertile soil. That is why these plains are called the food bowl of India. So hence we call the northern plains as the food bowl of India. Let's come to the plateau region. What is the plateau region? The plateau region forms the southern part of India. हमारे साउथ का जो पार्ट है इंडिया का, it is made up of the tableland or you can call it as the plateau region. The southern part of India looks like a cone in shape. अगर आप इंडिया का मैप देखो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे जो साउथ पोर्शन है it is conical in shape, just like an ice cream cone. It has a piece of land jutting into the sea. Some piece of land you can see which is emerging into the sea and surrounded by large water bodies on its 3 sides. और ये प्लेट्यू रीजन जो है इसके 3 तरफ हमें लार्ज वाटर बॉडीज मिलती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन. So you have 3 water bodies on its 3 sides.
It has a flat and uneven surface. Now this plateau region is flat but uneven, ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़. It is higher than the surrounding plains. और प्लेन एरिया से ये क्या है, ये लैंड जो होता है, सपोज दिस इज द प्लेन, द प्लेट्यू रीजन इज अबव इट, ये इससे थोड़ा सा ऊंचा होता है देन द प्लेन्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ प्लेट्यू. इट इज कॉल्ड एज अ प्लेट्यू, इसको प्लेट्यू बुलाते हैं. द सदर्न प्लेट्यू ऑल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू. हम सदर्न प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू भी बुलाते हैं. इट कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है इस प्लेट्यू यानी कि डेक्कन प्लेट्यू से कवर्ड है. द लैंड इज हार्ड, रॉकी एंड अनइवन. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ का लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा ठोस है. रॉकी मीन्स पथरीला है और अनइवन यानी कि स्मूथ बिल्कुल नहीं है. इट इज़ रफ सरफेस. This area is less fertile than the plains. This area is fertile but not like the plains. Plains जो हैं बहुत ज़्यादा fertile होते हैं, वहाँ बहुत crops grow किए जा सकते हैं वहाँ के silt soil की वजह से, लेकिन इस area में fertility थोड़ी सी कम होती है, ये less fertile होता है. It is suitable for growing cotton. Now which crop is grown more over here is cotton. यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो करी जाती है. However, it is very rich in minerals. मगर यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है और वो है minerals. It is often called the storehouse of natural wealth. तो हम इस एरिया को एक अलग नाम से भी बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं storehouse of natural wealth. Rivers like the Narmada, Tapi, Krishna and Kaveri flow through this plateau. इन plateau में कौन कौन सी rivers flow करती हैं? नर्मदा, तापी, कृष्णा और कावेरी. Let's study the Great Indian Desert, which is also called as the Thar Desert. ये डेजर्ट एरिया है जो हमारा बेसिकली राजस्थान की तरफ आता है और हम इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. लेट्स हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो. द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ सैंडी एरिया नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. ओके, तो हम इस सैंडी एरिया को या तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं या हम इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं. दिस रीजन इज हॉट, ड्राई एंड सैंडी. ये रीजन कैसा है? बहुत ही गर्मी वाला क्षेत्र है. ये यहाँ सूखा है और बहुत ही रेतीला है. सैंडी मीन्स बहुत ज़्यादा रेत प्रेजेंट है. आप ये यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ मिट्टी और रेत पाई गई है. देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल. यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है. वेरी लिटिल रेनफॉल. हार्डली एनी प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हेयर. यहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो करते हैं. द कैमल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेयर इज कैमल. कैमल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. इट कैरीज पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट. नाउ दिस इज एन एनिमल which gives milk also and it helps the people to carry their things and their goods, and it is easy for an animal like camel to cross the desert. Camel के लिए बहुत आसान होता है desert cross करना, whereas apart from other animals, दूसरे जानवरों के मुकाबले camel को बहुत easy होता है डेजर्ट में ट्रैवल करना. इसलिए हम उसको बुलाते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट. इट इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. इन दिस रीजन समर्स आर वेरी हॉट. तो गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. समर सीजन में बहुत यहाँ गर्म होता है और विंटर्स में जो नाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं. सर्दियों में जो रातें हैं दे आर वेरी कोल्ड. Let's come to the coastal plains. Now these plains lie along the coastline on both sides of the plateau. हमारे plateau region के sides में
लाई करता है एक प्लेन रीजन और ये एक कोस्ट लाइन है. In the southern part of the country, along with the coast are narrow strips of plain coastal land. हमारी कंट्री के सदर्न पार्ट में जो कोस्ट एरिया है वो जो है नैरो पार्ट्स हैं प्लेन के, जो कि हमारे एरिया को कोस्टल लैंड कहलाती है और हम उसको फर्टाइल रीजन भी कहते हैं. दे आर एक्चुअली वेरी फर्टाइल. These are sheltered by eastern and western घाट. इनको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी बुलाया जाता है. These are called western coastal plains and the eastern coastal plains. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इनको वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं. This region has many minerals. प्लेट्यू रीजन में भी बहुत मिनरल्स पाए जाते थे और इस रीजन में भी बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं. The climate in this region is neither too hot and nor too cold. तो यहाँ का जो मौसम है वो बेसिकली ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी वाला होता है. Let's come to the last topic of this chapter, the island region. Island region यानी कि वो हिस्सा हमारे अर्थ पे जो कि बेसिकली चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक लैंड रीजन है और इसके चारों तरफ पानी है, इसलिए हम इसको एक आइलैंड बुलाते हैं. An island is a piece of land completely surrounded by water. At a close look of the map of India, we can find several small islands in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. तो ये कह रहे हैं कि अगर हम अपना मैप देखेंगे इंडिया के तो आपको पता लगेगा कि कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आपको मिल जाएंगे. इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ग्रुप्स. हमारे इंडिया में 2 ग्रुप्स हैं ऐसे आइलैंड्स के जिनको हम बुलाते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और दूसरे जो हैं वी कॉल इट एज लक्षद्वीप आइलैंड्स. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बे ऑफ बंगाल. तो हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड पे जो हम आइलैंड देखते हैं उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दे लाई इन बे ऑफ बंगाल. द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अरेबियन सी. अरेबियन सी यानी कि हमारे इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है और उस सी में हमें कौन से आइलैंड्स मिलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स. एंड विद दिस With this, we now come to the recap of the chapter. India has 6 physical divisions: the Northern Mountains, the Northern Plains, the Plateau region, the Great Indian Desert, the Coastal Plains and the island groups. In the north, the Himalayas are the highest mountain ranges in the world. So remember कि Himalayas जो है हमारे world के सबसे ज़्यादा highest mountains हैं. The Northern Plains are called the food bowl of India. नदर्न प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. दे ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, इसीलिए हम उन्हें बुलाते हैं फूड बाउल ऑफ इंडिया. द सदर्न प्लेट्यू इज ऑफन कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ. सदर्न प्लेट्यू रीजन जो है जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं उसको हम बुलाते हैं स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू रीजन. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो किस चीज़ से कवर्ड है? बाय द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स विच आर प्रेजेंट in our Arabian Sea and Bay of Bengal are the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island. With this, we come to the end of the chapter. Let us do the exercises. Tick the correct options are there. Which animal is called the ship of the desert? Horse, bullock or camel? So the answer you all know is camel. Which is the highest mountain in the world? कौन सा है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? आई रिपीट, दे आर आस्किंग यू हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. ओके, एंड दैट इज माउंट एवरेस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द what? What are the northern plains known as?
What are the northern plains known as? The Thar Desert, Gangetic Plains or the coastal plains. The northern plains are also known as the Gangetic Plains. Which is the highest peak in India? कौन सी है highest peak India में? Whether K2, Nanda Devi or the Annapurna. So the highest peak in India is the K2. Fifth question, which water body surrounds India from the west? कौन सी water body है जो इंडिया को वेस्ट में सराउंड करती है? And that is the Arabian Sea. Let's come with the fill in the blanks. The word Himalayas means the abode of. The answer is snow. The river dash originates in the Himalayas. कौन सी रिवर है जो हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं? सब काफ़ी रिवर्स करती हैं, but basically we have to just write the name of one river. So I think Ganga is the most important river which you should write over here. The northern plains are located in the dash of the Himalayas. नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ लोकेटेड है? हिमालयस के साउथ में. हिमालयस के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स लोकेटेड है. द नॉर्दर्न प्लेन्स इज डैश फर्टाइल देन द थार डेजर्ट. नॉर्दर्न प्लेन्स थार डेजर्ट से कितना फर्टाइल है? कम या ज्यादा? सो इट इज मोर फर्टाइल देन द थार डेजर्ट. With this we have done the fill in the blanks. Let's do the true and false exercise. The first statement is the Great Himalayas are to the north of India. तो क्या Great Himalayas हमारे इंडिया के नॉर्थ में है? Yes, this statement is true. Second statement is the Himalayas have glaciers. तो हाँ, हमारे हिमालयास पे ग्लेशियर्स हैं. They are made up of snow. थर्ड स्टेटमेंट, मोस्ट पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. क्या सबसे ज़्यादा लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है एक फर्टाइल एरिया है जहाँ पे रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे लिव ओवर हेयर. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. दिस इज ट्रू. फोर्थ स्टेटमेंट स्टेज देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन द थार डेजर्ट. वो कहती है कि थार डेजर्ट में बहुत ही कम बारिश होती है. यस, दिस इज अनदर स्टेटमेंट विच इज ट्रू. फिफ्थ स्टेटमेंट, एन आइलैंड इज एन एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. क्या आइलैंड एक ऐसा एरिया है जो कि वाटर जिसमें 3 साइड्स पे सराउंडेड है? तो नहीं, आइलैंड एक ऐसा एरिया है जिसमें वाटर उसके सराउंडेड है चारों तरफ फ्रॉम ऑल द साइड्स. So this statement is false. Now let's come to the match the column. The first is Ganga. So what is Ganga basically? Is it what? Island, state, sea, mountain range, ocean, river, desert or mountain peak? It is a river. So Ganga is a river. You can write here number 1. Himalayas. क्या है Himalayas? Himalayas हमारी एक mountain range है. थर्ड, लक्षद्वीप. लक्षद्वीप क्या है? दे आर बेसिकली आइलैंड. सो यू विल राइट हियर नंबर 3. देन नेक्स्ट इज थार. व्हाट इज थार? इट इज द नेम ऑफ अ डेजर्ट. सो यू विल राइट हियर नंबर 4. K2 इज द फिफ्थ क्वेश्चन. K2 क्या है? K2 इज द नेम ऑफ अ माउंटेन पीक. K2 हमारी माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया. Sixth is Arabian. What is Arabian? Arabian is a sea. So you will write here number 6. Number 7 is Indian. What is Indian? Indian is the name of an ocean. So Indian Ocean, number 7. And 8th, the last question is Rajasthan. What is basically Rajasthan? It is the name of a state. With this we come to the end of the D question, that is match the columns. Let's come to the next question. Name the following. You have to name any 2 peaks of Himalayas. So any 2 peaks you can say. So what I will write here, I think we should write here K2 first, which is the highest peak in India. ये सबसे ऊंची पीक है. दूसरी मैं लिख देती हूँ कंचनजंगा.
Then next is any two rivers flowing through the northern plains. Northern plains में कौन सी दो rivers flow करती हैं? कोई भी दो rivers का name आपको बताना है. The first one is the Ganga and the second one is the Yamuna. Two island groups of India. What are the two island groups of India? The two island groups of India are Lakshadweep we call it Lakshadweep. हम इसे लक्षद्वीप बुलाते हैं. And the B1 is Andaman and Nicobar. Any two rivers that flow through Deccan Plateau. Deccan Plateau में कौन सी दो rivers flow करती हैं? वैसे तो नर्मदा, तापी, कृष्णा ये सब हैं. आप इनमें से किन्हीं दो का नाम लिख सकते हो और वो है जैसे नर्मदा and B is Tapi. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.